اسرائیل نے لبنان میں زمینی حملہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، لبنان میں اسرائیلی ٹینکوں اور آرٹلری سے حملے کیے گئے۔ لبنان نے اپنی فوجوں کو شمالی سرحد سے 5 کلومیٹر پیچھے ہٹا لیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی، اسرائیل کی بیروت میں رہائشی عمارت پر بمباری ایک ہی دن میں 216 حملے ہوئے۔ حزب اللہ کے 3 کمانڈر سمیت 105 افراد شہید، 359 زخمی۔ شہداء میں زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ حزب اللہ کے راکٹ حملے، شمالی اور اسرائیلی کمانڈر ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ علاقوں میں عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی حملوں سے غذائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ لبنان میں 20 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور۔ اقوام متحدہ کا لبنان کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا ہنگامی آپریشن شروع۔ برطانوی شہری فوری طور پر لبنان چھوڑ دیں۔ فریقین سے کہتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، خطے میں جنگ بندی سے ہی استحکام آئے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر۔ طاقت کے نشے میں پاگل اسرائیل کا جنگی جنون حدود کو چھونے لگا۔ یمن میں بھی محاذ کھول دیا۔ راس عیسیٰ حدیدہ بندرگاہوں پر بمباری، 4 شہری جاں بحق۔ تیل کی تنصیبات اور پاور سٹیشن میں آگ بھڑک اٹھی۔ غزہ میں بھی صہیونی فوج کے حملے، مزید 28 فلسطینی جامِ شہادت نوش کر گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,615 ہو گئی۔ 96,359 افراد زخمی ہو چکے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ کو روکنا ہوگا۔ سیز فائر کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کروں گا، امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان۔ امریکہ اسرائیل کی حق دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں محدود زمینی کارروائی کے بارے میں امریکہ کو آگاہ کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر رہا ہے۔ امریکہ لبنان میں جنگ بندی کی حمایت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی لبنان میں زمینی کارروائی کی مخالفت، کسی صورت میں لبنان میں تباہی کے متحمل نہیں ہو سکے۔ اسرائیل پہلے ہی لبنان پر فضائی حملے کر رہا ہے۔ لبنان میں زمینی کارروائی کے خلاف ہے انتونیو گوتریس کا بیان۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 2 روپے 7 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 40 پیسے کمی، نئی قیمت 246 روپے 29 پیسے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 1 روپے 3 پیسے سستا، نئی فی لیٹر قیمت 140 روپے 90 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 154 روپے 90 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 14 روز کی توسیع۔ ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ توسیع تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے مطالبے پر کی گئی۔ شہری 14 اکتوبر تک اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرا سکیں گے۔ اس سے قبل ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر مقرر کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کی سماعت۔ جسٹس منیب اختر کی 5 رکنی بینچ میں بیٹھنے سے معذرت۔ جسٹس منیب نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ چیف جسٹس نے اپنے خط میں آئینی سوالات کا جواب نہیں دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ چیف جسٹس کے خط میں ایک مہم چلی۔ کمیٹی کی گزشتہ میٹنگ میں چیف جسٹس نے سینئر جج کی سربراہی میں بینچ تشکیل دینے کی رائے دی۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ بینچ کی سربراہ کیوں بنے؟ وجوہات سامنے نہیں آئی۔ لارجر بینچ میں ایڈ ہاک جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو شامل کیا گیا۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی بینچ میں شمولیت آرٹیکل 182 کے خلاف ہے۔ کمیٹی کے تشکیل کردہ بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کا خط پڑھ کر سنایا۔ جسٹس منیب اختر کی درخواست کریں گے وہ بینچ میں بیٹھیں۔ جسٹس منیب اختر کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ بینچ کی تشکیل نو ہوگی۔ قانون کا تقاضا ہے کہ نظر ثانی اپیل پر سماعت وہی بینچ کرے۔ چیف جسٹس کے ریمارک۔ جسٹس منیب اختر کے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار۔
केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। समाअत आज फिर होगी। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ। समाअत के हुक्मनामे में एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। समाअत का हुक्मनामा जुडिशियल ऑर्डर नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जजेस कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। आर्टिकल 63 की तशरीह का केस बानी पीटीआई के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ 5 के बजाय 4 जजेस अदालत में बैठे तो हमने एतराज़ उठाया। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। नए बेंच की तश्कील का भी फैसला होगा। हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 63 बनाया गया था। आईनी बहरान के हल के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठ कर फैसला करना होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। जजेस तकर्री के मौजूदा निज़ाम को बदलना होगा। इत्तेहादी जमातें असूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुतालिक हमारी तजावीज़ से मुत्तफिक नहीं। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुतफ़िका मुसव्वदा बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएँ। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। वक्त आ गया हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। 18वीं तरमीम के जरिए हमने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वहाँ बड़े बड़े हाथी हैं। इस्लामाबाद में होने वाली लड़ाइयों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फार्म से खिताब। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इदारों से मिलने वाले डॉलर विफाक ने अपनी जेब में रख लिए। बरसों हो गए विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए एक घर नहीं बनाया। बलूचिस्तान के साथ सौतेले जैसा सलूक किया गया। ये किस किस्म का इंसाफ है। विफाक सैलाब मुतासरीन तक रकम जरूर पहुंचाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन के माबैन इत्तफाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए गए नामों पर ट्रिब्यूनल्स बनाए।
8 सितंबर को जलसे में की गई रियासत मुखालिफ तकरीर, हुकूमत की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। संजानी जलसे में तकरीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीह कर दी। मामले की वफाकी कबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। सेक्शन 196 के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। मौलाना के बगैर नहीं आ सकती रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं हमें नंबर की जरूरत नंबर की वजह नहीं है, प्रॉब्लम 3 नहीं 4 नहीं तो अगर यार प्रॉब्लम नंबर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि अगर मौलाना इमरान खान को डी चौक पे ज्वाइन करने का कह दें तो फिर क्या करेंगे। और वो मुतनब्बे कर रहे हैं इस हवाले से कि हमें ना आजमाओ, सड़कों पे आ गए तो इस वक्त ये कहना कि मौलाना एंड इवन हाफिज नईम, अगर मैं हुकूमत के साथ हूं तो मैं तो डेस्परेट हूंगा कि ये दो बंदे इनको न्यूट्रलाइज पीटीआई के साथ तो बिल्कुल ना जाए। ये दो बंदे अगर पीटीआई के साथ जुड़ जाएं तो देखिए हुकूमत को कल जाना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईम रहमान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठे तो हुकूमत नहीं चल सकती। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज एक दिन के लिए नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बलूचिस्तान से काफिले आएंगे। अज़मा बुखारी को गलतफहमी है कि पंजाब पीटीआई के साथ नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अल यमीन गंडापुर फिर मुखालफिन पर आग बगोला। गोलियां और तशद्दुद हमें नहीं रोक सकते, जहां हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना और पीटीएम का धरना किसी ने रोका? एक मुल्क में दो फैशन नहीं चल सकते। पंजाब पुलिस के एहलकारों को अपने कारकुनों से छुड़ाया, इस पर अपने लोगों पर तनकीद का सामना करना पड़ा। अगली बार हाथ लगाओगे तो खुदा की कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। पंजाब हुकूमत का शोर बताता है उन्हें बहुत तकलीफ हुई है, बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ। फॉर्म 47 वालों को नहीं छोड़ूंगा। अल यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। जमानत खारिज करनी है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, लोगों को अगवा न करें। लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लापता अफराद केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में पेश। लापता अफराद के खानदान हमारे पीछे आते हैं, जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। CTD और पुलिस समेत सबको बिठाकर इस मामले को देखें। ये पहला वाक़या नहीं, बार बार ऐसा होता रहा। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं होगा। हम मजबूर होकर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मैं खुद इस तरह के मामलात के खिलाफ हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमत ने डियाला जेल में समाअत की। पीटीआई ने सऊदिया से मिलने वाला 7 करोड़ 15 लाख मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। FIA ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदिया से बल्गारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है। प्रोसिक्यूशन के दलाइल। तोशा खाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्ज़ामात, एक जैसे वादा मुआफ़ गवाह है। एक तोशा खाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? नैब तरमीम बहाली फैसले के बाद इस केस को ख़त्म करना चाहिए। वकील सफाई सलमान सफदर के दलाइल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर-ए-आज़म का नया रिकॉर्ड। अमरीकी सदर पर 20 सबकत ले गए। शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली से खिताब को 1,37,000 लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। जो बाइडन का खिताब 1,01,000, चीन के वज़ीर ख़ारजा का खिताब 81,000, तुर्क सदर उर्दवान का खिताब 51,000 लोगों ने देखा। सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की अदाद-ओ-शुमार जारी। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 3 रोज़ा क़याम के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज भी हमरा।